watch this topic in Hindi, skip the video to 3 minutes and 6 seconds. Hello everyone, welcome to another episode of Legal Update. Today's topic of discussion is Rights of Persons with Disability Act 2016. First, let us see why is it in the news. Recently, the Supreme Court in Nipun Malhotra vs Sony Pictures Films India Private Limited laid down guidelines for ensuring the sensitive portrayal of persons with disabilities by creators on visual and electronic media. The court also highlighted the difference between disability humor and disabling humor, which often gets overlooked by media creators. Let's look at the background of the case. This case is a public interest litigation claiming that the film Aankh Mein Choli is derogatory to people with disabilities. The appellant claims that the film violates the constitutionally protected rights of persons with disabilities and the provisions of the Cinematograph Act 1952 and the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. The petitioner suggested that having representation on the advisory panel would ensure the consideration of sensitivities in the certification process. The court also referred to training and sensitization programs as a framework for the ideal portrayal of PWDs by the visual and electronic media without there being an entrenchment of the media's right to freedom of speech under Article 19, Clause 1. The court observation was as follows. A division bench comprising Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Preetham Singh Arora said that courts generally do not interfere after CBFC gives a certificate to a film. The bench further observed that creative freedom should be cherished and that there is no need to curtail it. Let's discuss the guidelines laid down on the sensitive portrayal of PWDs by the Supreme Court. Terms like cripple and spastic are offensive and reinforce negative perceptions of PWDs. Avoid terms that individualize impairment and ignore social barriers such as suffering or victim. Creators must research and accurately represent medical conditions to prevent misinformation and stereotypes. Visual media should show the varied realities of PWDs, including their achievements and contributions. PWDs should not be mocked or portrayed as either helpless or superhuman. The principle of nothing about us without us should guide the inclusion of PWDs in decision-making bodies and statutory committees to ensure their perspectives are considered. Consulting with PWDs and advocacy groups can ensure sensitive portrayals and adherence to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Let's now discuss a case law related to it. National Federation of the Blind vs Union Public Service Commission 1993. The Supreme Court of India in this case held that blind candidates should be allowed to appear for the civil services examination conducted by the UPSC. This landmark judgment ensured equal opportunities for blind candidates in public employment. Before we wrap up, here's a question for you. Which of the following rights is guaranteed under Article 19, Clause 1A of the Indian Constitution? Right to equality, right to freedom of speech and expression, right to protection of life and personal liberty, or right to education? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में निपुण मल्होत्रा बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रचनाकारों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के संवेदनशील चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। न्यायालय ने दिव्यांगता हास्य और दिव्यांग करने वाले हास्य के बीच अंतर पर भी प्रकाश डाला, जिसे अक्सर मीडिया रचनाकारों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला एक जनहित याचिका है जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म आंख में चोली दिव्यांग लोगों के लिए अपमानजनक है। अपीलकर्ता का दावा है कि यह फिल्म दिव्यांग व्यक्तियों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि सलाहकार पैनल में प्रतिनिधित्व होने से प्रमाणन प्रक्रिया में संवेदनशीलता पर विचार सुनिश्चित होगा। न्यायालय ने प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों को दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिव्यांगजनों के आदर्श चित्रण के लिए एक रूपरेखा के रूप में संदर्भित किया, जिसमें अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं किया गया है। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर CBFC द्वारा किसी फिल्म को प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती हैं। पीठ ने आगे कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए और इसमें कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांगजनों के संवेदनशील चित्रण पर दिशा निर्देश जारी किए गए। अपंग और अस्थि विकलांग जैसे शब्द आपत्तिजनक हैं और दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक धारणा को मजबूत करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें जो दिव्यांगता को व्यक्तिगत बनाते हैं और सामाजिक बाधाओं को नजरअंदाज करते हैं, जैसे पीड़ित या पीड़ित। गलत सूचना और रूढ़िवादिता को रोकने के लिए रचनाकारों को चिकित्सा स्थितियों पर शोध करना चाहिए और उन्हें सटीक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। दिव्यांगजनों की विभिन्न वास्तविकताओं को दर्शाया जाना चाहिए, जिसमें उनकी उपलब्धियां और योगदान भी शामिल हों।
दिव्यांगजनों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उन्हें असहाय या अति मानव के रूप में चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे बारे में कुछ भी नहीं, हमारे बिना कुछ भी नहीं के सिद्धांत को निर्णय लेने वाले निकायों और वैधानिक समितियों में दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए। दिव्यांगजनों और वकालत समूहों के साथ परामर्श में संवेदनशील चित्रण और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े एक निर्णय विधि के बारे में। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बनाम संघ लोक सेवा आयोग 1993। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दृष्टिहीन उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले ने सार्वजनिक रोजगार में दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1A के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी गई है? समानता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।